Hello students, this is Ruby from Super 20 Institute. So in today's class we are going to discuss about electrical and magnetic properties of solids. So this is chemistry class. In today's class we are going to discuss electrical and magnetic properties of solid. So let us discuss about electrical property first. So in our lower classes we have studied that there are two types of conductor and insulators. So what are conductor which can conduct electricity? The general definition of conductor, the substances which conduct electricity. Okay, and what are insulators? The substances which do not conduct electricity or do not allow electric current to pass through them. Electricity. So we know that the conductance is due to the presence of free electrons, because फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जब मोशन होता है तो हमारा करंट जनरेट होता है। तो हमारा अगर फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन इस साइड में है तो हमारी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी? ऑपोजिट टू इट। These all things you have studied in your lower class. So अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक वायर है कॉपर की, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर मेरी तरफ हो रहा है तो करंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ओके, now we also have one another category which is called semiconductors. What is that called? Semiconductors. What are semiconductors? Whose substances, write down substances whose electric conductivity lies between conductor and insulators. जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं they will conduct on a particular temperature range. अगर हमारे जो सेमीकंडक्टर है हम इन्हें कुछ टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड करते हैं तो ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। सो एग्जांपल्स आर मेटल्स। इंसुलेटर्स के एग्जांपल्स लाइक रबर, प्लास्टिक। And what are the examples of semiconductors? Like silicon, germanium, etc. Okay. So first of all हमें study करना है conductance due to metallic nature. Conductance in metal. So conduction of electricity
in metals. So we all know that metal will conduct in solid as well as in their molten state. Metals will conduct in solid as well as in molten state. Molten state. ये हमने अभी पीछे पॉइंट पढ़ा था मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड में. ओके, नाउ वी आल्सो नो दैट मेटल्स हैव एटॉमिक ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद देम. सो मेटल्स किसके बने होते हैं? एटम्स के, एंड एटम्स हैव एटॉमिक ऑर्बिटल्स. सो दिस इज आवर एटॉमिक ऑर्बिटल्स. और ऐसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं हमारे पास? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. Molecular orbitals of same energy. Atomic orbitals having same energy and same sizes will overlap to form molecular orbitals. Okay, this is atomic orbital. And on the combination of these two, we have molecular orbital. Okay, now ऐसे ही बहुत सारे मोलिकुलर ऑर्बिटल्स मेटल के कंबाइन होकर हमारे पास बनाते हैं फॉर्मेशन ऑफ बैंड्स. एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने मिलकर मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाए एंड बहुत सारे मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कंबाइन करके बनाते हैं हमारे पास बैंड. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ बैंड. जो हमारा फर्स्ट बैंड होगा दैट विल कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स. So we have two types of band. कौन कौन से बैंड होंगे हमारे पास? कंडक्शन बैंड, or you can make it as, okay, this is conduction band which is higher in energy. This band is higher in energy. Okay, and we have a band which is lower in energy and that contains electrons, that is known as valence band. Low in energy. Fine. Like suppose we have an example of manganese. So its configuration is argon 18, 4s2, 3d10. So all these electrons will be present in this valence band. Okay, यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन है 18 plus 2 plus 10, तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है 25 इलेक्ट्रॉन, they all will be present in valence band. Okay, तो क्या होता है, इन्हीं के बेस पर हमने जो है वो क्लासिफाई किया सॉलिड को ऑन द बेसिस ऑफ दिस बैंड्स. मेटल्स में, कंडक्टर्स में, इंसुलेटर्स में एंड सेमीकंडक्टर्स में. ओके, एंड ये जो बीच में रीजन है इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फॉरबिडन जोन और फॉरबिडन रीजन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट मेटल्स. तो मेटल के लिए ये बैंड कैसे लाई करेंगे? इन मेटल्स द कंडक्शन बैंड एंड द, और कौन सा बैंड था? वैलेंस बैंड. कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड will overlap. Okay, or they will have very less gap between them. तो इनके बीच का जो गैप होता है कंडक्शन बैंड का, दिस इज माय कंडक्शन बैंड, यहाँ तो ये क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे. This is my conduction band and this is my valence band. तो इनके बीच का जो ऑर्बिटल
कोएग्जिस्ट हियर, तो क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे या फिर इस लेवल पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो ओवरलैपिंग की वजह से वो इजीली जंप करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, तो इस वजह से क्या होगा, वो कंडक्शन शो करेंगे, ठीक है, दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच का जो गैप होगा दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल, इनके बीच का फॉरबिडन जोन का जो गैप है दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल। तो ओवरलैपिंग की वजह से क्या हुआ, अब जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको थोड़ा सा डिस्टेंस है, बस वो जंप करेंगे इजीली और कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे फ्रॉम वैलेंस बैंड। ओके, सो दिस हैपन इन मेटल्स। अब हम बात करेंगे इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स, सो व्हाट हैपन इन केस ऑफ इंसुलेटर्स, ये जो कंडक्शन बैंड है एंड ये जो वैलेंस बैंड है, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप होगा दैट विल बी वेरी हाई, दिस इज कंडक्शन बैंड एंड दिस इज वैलेंस बैंड, तो ये जो फॉरबिडन जोन का गैप है इट विल बी वेरी वेरी हाई। तो गैप हाई होने की वजह से क्या हुआ, वैलेंस शेल में तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट है, बट गैप ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएंगे कंडक्शन बैंड में, सो जंप ना होने के कारण जो है इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होगी, तो इसलिए दिस इज द रीजन अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी दैट इंसुलेटर्स डू नॉट कंडक्ट। ओके, सो दीज आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। अब हमारे पास है सेमीकंडक्टर्स। So our next topic is conduction of electricity in semiconductors. Semiconductors. So first of all, let us understand what is semiconductors. Semiconductors में क्या होता है, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दिस इज कंडक्शन बैंड एंड दिस इज वैलेंस बैंड। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फॉरबिडन जोन है, जो एनर्जी गैप है दैट इज कंपैरेटिवली इंसुलेटर के कंपैरिजन में जो ये गैप है दैट इज स्मॉल, तो गैप स्मॉल होने की वजह से ये कंडक्ट कर सकते हैं, बट इनकी जो कंडक्टिविटी होती है दैट इज वेरी मच लो। ओके, सेमीकंडक्टर्स बिकॉज गैप जो है वो लो है, सेमीकंडक्टर्स हैव वेरी लो कंडक्टिविटी। लो कंडक्टिविटी होने के कारण क्या होता है, लो कंडक्टिविटी होने के कारण द सेमीकंडक्टर्स आर नॉट यूजफुल। ओके, तो लो कंडक्टिविटी के कारण इनका ज्यादा यूज नहीं होता, बट हम इनको यूज करने के लिए क्या करते हैं, इनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं बाय एडिंग इम्प्योरिटीज एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। यहाँ पे लिखो द, यहाँ से कंटिन्यू करो, सेमीकंडक्टर्स हैव वेरी लो कंडक्टिविटी दैट्स व्हाई they are not used as much for increasing the conductivity some impurities. What are impurities? Impurities are the extra substances that will be added in pure crystals. Okay, suppose मेरे पास एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है, तो ये प्योर फॉर्म में है, अब यहाँ पे इम्प्योरिटी की तरह कौन एक्ट करेगा, कोई भी एक आप मेटल एलिमेंट ले लो, वो इम्प्योरिटी की तरह एक्ट करेगा, जैसे ये आर्सेनिक हो गया या इसमें और भी कुछ ऐड करता है तो वो इम्प्योरिटी की तरह एक्ट करेगा बिकॉज ये प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल है। फॉर इंक्रीजिंग द conductivity some impurities are added to semiconductors. This process of adding impurities in semiconductor to increase their conductivity
This process is called doping. This is very important topic. Okay, very important. This process is called doping, and the impurity is called dopant. Okay, what does impurity called? It is called dopant. Okay. Now let us study about doping. So there are two types of impurities: electron rich impurity, and another one is electron deficient impurity. Okay, write down. So इन टॉपिक्स को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि इम्प्योरिटी की तरह कौन एक्ट करता है। तो उसके लिए आप लिखो ग्रुप 13 के एलिमेंट, ग्रुप 14 के एलिमेंट एंड ग्रुप 15 के एलिमेंट। ओके, तो ग्रुप 13 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, ओके, लेड, एंड यहाँ पे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एंटीमनी, बिस्मुथ। ओके, तो ये सारे जो है इम्प्योरिटी की तरह एक्ट करेंगे। कैसे अभी हम स्टडी करेंगे अबाउट इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी। सो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी में क्या होगा? लेट अस सपोज आई हैव अ सेमीकंडक्टर ऑफ सिलिकॉन। ओके, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखा था सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एक्ट एज सेमीकंडक्टर। हम सिलिकॉन का एग्जांपल लिखते हैं एंड आपको यहाँ पे पता होना चाहिए द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कि यहाँ पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ग्रुप 13 में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप 4 में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस एंड 5 में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस। ओके, तो ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी के लिए लेट अस टेक सिलिकॉन। सो सिलिकॉन बिलोंग्स टू group 14 and it will be have 4 electron and it is tetravalent in nature as similar as carbon। तो सिलिकॉन अगर टेट्रावैलेंट है तो सिलिकॉन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। so let us consider I have a semiconductor of silicon in its pure form silicon। तो जब मेरे सेमीकंडक्टर्स हैं जो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है तो तब मैं उनको बोलूंगी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक semiconductors। Why they called intrinsic semiconductors? Because that is I have a semiconductor। तो मैंने जब इसको हीट किया तो हीट करने की वजह से क्या हुआ? its conductivity increases। तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर्स को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ओके, और उसी तरह जब हम एक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो तब हम उन कंडक्टर्स को बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो आप ये लिख लो, जब हम इम्प्योरिटी को ऐड कर देते हैं, दिस इज सेमीकंडक्टर, दिस इज इम्प्योरिटी एंड हियर इज फॉर्मेशन ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ओके, इंट्रिंसिक मींस प्योर फॉर्म। ओके,
चलो अब एग्जाम्पल देखो। यहाँ पे देखो सिलिकॉन का क्रिस्टल है, इसी तरह यहाँ पे भी बॉन्ड बने होंगे। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पे इम्प्योरिटी ऐड करती हूँ, आर्सेनिक की इम्प्योरिटी, सपोज मैं ग्रुप 15 की इम्प्योरिटी को ऐड कर रही हूँ सिलिकॉन में, तो क्या होगा, सिलिकॉन विल बी टेट्रावैलेंट, सिलिकॉन हैव 4 इलेक्ट्रॉन एंड आर्सेनिक विल हैव 5 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, सपोज इस सिलिकॉन की प्लेस पे यहाँ पे आर्सेनिक आ गया। अब क्या हुआ, आर्सेनिक ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन तो यूज कर लिए, यहाँ देखो ध्यान से, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसने 4 बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए, बट इसका एक जो इलेक्ट्रॉन होगा फ्री इलेक्ट्रॉन, वो ऐसे ही एज इट इज रह जाएगा। ओके, अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे ही और आर्सेनिक आएंगे, सपोज एक आर्सेनिक ने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ 1 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशंस की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जनरेट होगी। ओके, सो here the conductivity is due to electrons. Okay, electrons की वजह से conductivity generate हुई, which have negative charge, so these are called n type of semiconductors. This is very important. जहाँ पे कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जनरेट होती है, उन्हें हम बोलते हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ओके, एन मींस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ओके, नाउ अब हमें देखना है दूसरा एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी का। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now let us talk about electron deficient impurity. आपको याद रखना है कि जब हमें इलेक्ट्रॉन रिच एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ग्रुप 14 में डॉकिंग कर देंगे ग्रुप 15 के एलिमेंट की। ओके, यहाँ पे हमारे पास बनेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड यहाँ पे हमारे पास बनेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक conductivity due to electron deficient impurity. Similarly, let us suppose मैंने फिर से सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया, तो सिलिकॉन विल बी टेट्रावैलेंट, तो ऐसे करके बॉन्डिंग होगी ना, फर्दर अगेन 4 बॉन्ड्स बनाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमें बनाना है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी यूज करनी है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अगर सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हम कौन सा लेंगे, ग्रुप 13 का एलिमेंट लेंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट दैट मींस हमें 3 इलेक्ट्रॉन वाला चाहिए। तो सपोज मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ इंडियम को, दिस इज IN। ओके, सपोज मैं इंडियम को यूज कर रही हूँ, तो यहाँ पे सिलिकॉन को रिप्लेस करके कौन आ जाएगा, इंडियम। Okay, now we know that indium has 3 electrons. Okay, but यहाँ पे तो सिलिकॉन ने 4 बॉन्ड्स बनाए थे, बट इसके पास तो 3 इलेक्ट्रॉन था, तो ये पहले तो 3 बॉन्ड बना लेगा, एंड ये वाला जो बॉन्ड होगा यहाँ पे, ये बॉन्ड नहीं बन पाएगा, तो यहाँ पे एक होल जनरेट हो जाएगा, मींस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और ये इसका इलेक्ट्रॉन। तो इस होल को हम बोलते हैं, इस वेकेंट पोजीशन को हम बोलते हैं होल, and it is due to positive charge. Okay, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, p type of semiconductor, p type semiconductor which are generated due to the presence of hole, which are generated due to
presence of hole. ओके, तो अब यहाँ पे कैसे कंडक्टिविटी होगी, ये जो मेरी वेकेंट पोजीशन है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन, सपोज ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, इस होल को ऑक्यूपाई कर लेगा. ओके, देन जब यहाँ से जंप करेगा तो इस होल को ऑक्यूपाई करेगा, देन क्या होगा, यहाँ पे एक वेकेंट होल जनरेट हो जाएगा. इस होल को अब इस सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा, देन यहाँ पे होल जनरेट हो जाएगा. ऐसे ही फर्दर प्रोसेस चलती रहेगी. होल को इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्यूपाई करते जाएंगे एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू होल्स. तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर्स को क्या बोलते हैं हम, पी टाइप सेमीकंडक्टर, इन विच कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, और वी कैन कॉल इट एज होल. ओके, तो ये आपको आ गया समझ. These topics are very very important. P-type semiconductors and N-type semiconductors, and both P and N-type together makes extrinsic semiconductors. Okay. अब हमने इनकी एप्लीकेशंस पढ़नी है, इनके यूजेस पढ़नी है. So, uses of semiconductors or uses of N or P-type semiconductor. Okay, the first use है, we can use the semiconductors as diode. These are used as diodes. Okay. That is, we can make rectifiers from P and N type of semiconductors. Okay. तो हम जब सर्किट फॉर्मेशन करते हैं, हम कुछ ऐसे बनाते हैं ऑपरेटर्स, तो वहां पे हम डायोड का यूज करते हैं. ओके, जब हम पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर को कंबाइन करके डायोड की फॉर्मेशन करते हैं. नेक्स्ट, दे कैन बी यूज्ड as transistors by sandwiching PNP or NPN types of semiconductor. जैसे सैंडविच में क्या होता है, ब्रेड एंड कटलेट एंड ब्रेड, तो ये तीन टाइप के लेयर्स होते हैं. तो ऐसे ही हम यूज करते हैं पी एंड पी, और या फिर हम यूज कर सकते हैं एन पी एंड एन. ओके, थर्ड यूज होगा, दे विल बी यूजिंग, दे कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स. तो क्या होता है सोलर सेल्स में, कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी. तो ये सोलर सेल में भी यूज होते हैं. इसी तरह हम और भी जो है सेमीकंडक्टर्स बना सकते हैं. आप ग्रुप 13 को 14 के साथ मिक्स कर दो, 14 को 13 के साथ मिक्स कर दो, 15 को 14 के साथ मिक्स कर दो. तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो जनरेट होते हैं. देयर आर ऑल्सो अदर semiconductors which are formed by doping of group 13, 14 and 15. तो इनकी डोपिंग करके और भी हमारे पास बन सकते हैं. Okay, oxides of transition metal, is it visible? मैं ऊपर लिख देती हूँ. Oxides of
transition metal elements can also act as semiconductors. तो यहाँ से भी बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स हम बना सकते हैं. ओके, नाउ this is all about our topic electrical properties of solid. Now we are going to study about magnetic properties. Our next topic is magnetic properties. Magnetic property. Okay. So note down this heading. Okay. So we all know that in an atom we have a nucleus and also we have an electron, or we have electrons that are revolving around this nucleus. Okay. So we have two type of motions of electron. तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के टू टाइप के मोशंस होते हैं. फर्स्ट मोशन इज electron revolving around nucleus. Second is, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल मोशन. व्हाट वी कॉल्ड इट, ऑर्बिटल मोशन. ठीक है, दिस इज ऑर्बिटल मोशन एंड इलेक्ट्रॉन रोटेट्स ऑन इट्स ऑन एक्सिस. इसको हम बोलते हैं स्पिन मोशन. सो वी ऑल नो दैट जैसे हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है एंड अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है, उसी तरह जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है इट विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस आल्सो एज वेल एज इट विल रोटेट ऑन इट्स ऑन एक्सिस. तो क्या हुआ, फर्स्ट मोशन हो गया हमारा ये जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ से हमारे पास जनरेट हुई मैग्नेटिक मूवमेंट. ड्यू टू दिस टाइप ऑफ मोशन देयर इज अ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट. तो थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी इस मोशन के कारण. दूसरी हमारा ये जो मोशन है जब इलेक्ट्रॉन हमारा अपने ही एक्सिस पे स्पिन कर रहा है, तो यहाँ पे भी क्या जनरेट हो रहा है हमारे पास, मैग्नेटिक मूवमेंट. Okay, so the magnitude of this magnetic movement is very small and it is measured in a unit that is called Bohr magneton. Bohr magneton. Okay, and its value is, Bohr magneton की वैल्यू है आपके पास 9.27 to 10 raised to power minus 27. Okay, so write down its unit, minus 24. Okay, and it is represented as mu b, that is Bohr magneton. Okay, तो यहाँ तक क्लियर हो गया. इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से हमारे पास कुछ टाइम के लिए जो है मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होती है. तो एक ऑर्बिटल मोशन, दूसरा स्पिन मोशन. एंड ऑल्सो वी नो दैट ये जो इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज भी स्पिन कर सकते हैं एंड ऑल्सो ये एंटी क्लॉकवाइज भी स्पिन कर सकते हैं. तो क्वांटम नंबर इज ms प्लस माइनस हाफ, प्लस फॉर क्लॉकवाइज एंड माइनस फॉर एंटी क्लॉकवाइज. ओके, तो अब देखो इसी मोशन की वजह से वी हैव कैटेगराइज्ड द सब्सटेंसेस और सॉलिड्स इनटू 5 कैटेगरीज. तो फर्स्ट हमारे पास आ रही है जो कैटेगरी, दैट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस. तो
about paramagnetic substances. Paramagnetism. यहाँ पे paramagnetic substances, the substances देखो, the substances which are weakly attracted by the magnetic field. Suppose मेरे पास एक substance है that is paramagnetic in nature. Okay, suppose it is in liquid form. तो ये मेरे पास substance है. जब मैंने यहाँ पे magnetic field apply की तो क्या होगा, ये paramagnetic substance attract होगा towards the magnetic field, but the magnitude is very very weak. Okay, तो ये weakly attract होते हैं magnetic field की तरफ. Next is इसी के बारे में, paramagnetic substance के बारे में, they have unpaired electrons. इनके पास unpaired electrons होते हैं. Next, their magnetism did not depend upon temperature. अगर आप टेम्परेचर को राइज और फॉल कर रहे हो तो भी इनका जो नेचर है वो एज इट इज ही रहेगा. इनका मैग्नेटिज्म डिड नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दे लॉस देयर मैग्नेटिज्म in the absence of magnetic field. और आप इस मैग्नेटिक फील्ड को बी वेक्टर से भी डोनेट कर सकते हो. ओके, अब देखो, लेट अस टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स. तो इनके एग्जांपल्स में आ जाएगी हमारे पास O2 मॉलिक्यूल एंड मैग्नीज 2 पॉजिटिव. अब हमने O2 के बारे में पढ़ा था that it is paramagnetic in nature. कहाँ पे पढ़ा था हमने? MOT में. Molecular orbital theory के according the oxygen molecule is paramagnetic in nature, that is it contain 1 unpaired electron. Okay, and Mn2 positive की configuration लिखो. What is the configuration of Mn? Argon 18 4s2 3d5. Mn2 positive की क्या हो जाएगी? We have to remove the electron from s orbital. तो यहाँ पे आर्गन 18 4s0 and 3d5, and we know that d5 electrons are unpaired electrons. तो हमें कैसे पता लगा ये unpaired electron है? मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको. देखो यहाँ पे d5, तो d ऑर्बिटल, d में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे 5. ओके, तो हम d5 के डिस्ट्रीब्यूशन 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे. तो हमने अकॉर्डिंग टू द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रूल क्या पढ़ा था? फर्स्ट ऑफ ऑल सभी ऑर्बिटल्स जो हैं वो ऑक्यूपाई होंगे, देन उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी. तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते 1 2 3 4 5, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे दोनों को पेयर कर दिया एंड 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो ड्यू टू पॉली एक्सक्लूजन रूल हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे ऑर्बिटल जो हैं वो फिल होंगे, देन उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी. ठीक है, कॉन्स रूल के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, these are 5 unpaired electrons, so it is very very highly paramagnetic substance. Okay, अब हमें पढ़ना है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में. So लिखो, second category is diamagnetism.
फर्स्ट पॉइंट होगा दे आर वीकली attracted by the magnetic field. अगर आप कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हो तो इट विल बी वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, नेक्स्ट दे हैव paired electrons. Okay, they have paired electrons as compared to paramagnetic substance. वहाँ पे unpaired थे and यहाँ पे paired electrons होंगे. Okay, third is their magnetism did not change with temperature. Fine, ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता इनका नेचर, कि डायमैग्नेटिक ही रहेंगे हर कंडीशन में. ओके, अब ना पैरामैग्नेटिक में एक बताना था आपको पॉइंट. तो ये देखो, इफ आई कंटेन द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इन अ ट्यूब, तो मैंने इस ट्यूब में एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को डाल रखा हुआ है. ओके, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या थे? वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड. तो सपोज मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, दैट इज माय नॉर्थ पोल एंड दिस इज माय साउथ पोल. तो जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो ये रिपेल करते हैं इसको, तो यहाँ से लिक्विड का लेवल जो है वो फॉल कर जाएगा और यहाँ तक आ जाएगा. ओके, इसी तरह अगर मैं बात करूँ, ये मैंने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में बताया. अगर मैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लेती हूँ तो इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ माय लिक्विड इज अप टू दिस लेवल. तो जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो मैग्नेटिक फील्ड विल वीकली अट्रैक्ट दिस लिक्विड. ओके, तो क्या हो जाएगा? ये लिक्विड राइज कर जाएगा. This liquid will rise. Okay, this is about diamagnetic substance. And यहाँ पे example लिखो, zinc 2 positive. So what is the configuration of zinc 2 positive? That is argon 18 4s0 3d10. So how to fill this d orbital? fill करने के लिए क्या करेंगे? 1 2 3 4 and 5. तो यहाँ पे फिलिंग कैसे होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सभी बॉक्सेस को, ऑर्बिटल्स को फिल करना है. देन हमें एंटी क्लॉकवाइज इनको फिल करना है. d10, वी हैव d10 इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे क्या हुआ? सारे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी. दैट मींस इट हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो दिस इज ऑल अबाउट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. नेक्स्ट इज फेरोमैग्नेटिज्म. What is ferromagnetism? Ferromagnetism. So देखो यहाँ पे ferromagnetism के बारे में, they are strongly attracted by the magnetic field. Okay, तो हमने पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक में क्या पढ़ा था कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं तो वो जो सब्सटेंसेस है अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देते हैं. बट यहाँ पे क्या है? दीज आर परमानेंट मैग्नेट्स. दे गॉट मैग्नेटाइज्ड परमानेंटली. ओके, परमानेंटली. तो ये परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं एंड देयर magnetism change with temperature. They are temperature dependent. Okay, after applying a certain range of temperature the ferromagnetic substance will change into paramagnetic substance. The next point लिखो, on heating to a high temperature, the ferromagnetic substance changes to paramagnetic.
paramagnetic substance, and this particular temperature is called Curie temperature. This is very important. This temperature is called Curie temperature. Okay, लिख लो यहाँ पे Curie temperature. ओके यहाँ पे तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर, तो आपने लिखना द टेम्परेचर अबव विच द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस विल चेंज इनटू पैरामैग्नेटिक इज कॉल्ड द क्यूरी टेम्परेचर एंड दिस इज ड्यू टू रीजन. लिखो अभी मैं आपको रीजन बताती हूँ व्हाई द सब्सटेंस चेंज इट्स बिहेवियर. लिखो रीजन कि क्यों नेचर चेंज होता है पैरामैग्नेटिज्म से पैरामैग्नेटिज्म में. दिस इज ड्यू टू randomization of domains. So what are domains? हमारे पास कुछ ऐसे ओरिएंटेशंस प्रेजेंट होती हैं, ये हम बोलते हैं डोमेन्स. इन डोमेन्स की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होती है. तो डोमेन्स आर uneven distribution of electron is called domain, and this due to this domain magnetic movement will be generated. Okay, so अब देखो next is your पहले क्यूरी टेम्परेचर लिख लो. क्यूरी टेम्परेचर ऑफ कोबाल्ट निकल. तो लिखो 358.131 डिग्री सेल्सियस. तो ये नोट कर लो. ओके note it down. Next is antiferromagnetism. So what is antiferromagnetic substances? These the substances which seems to be paramagnetic or ferromagnetic but in actual they are anti-ferromagnetic. So ये सब्सटेंसेस देखने में तो हमें लगता है कि यार क्या होंगे, ये पैरामैग्नेटिक होंगे या फिर पैरामैग्नेटिक होंगे, बट ये एक्चुअल में एंटी पैरामैग्नेटिक होते हैं. तो क्यों? बिकॉज हमें पता है ये जो स्पिन है ये या तो क्लॉकवाइज मूव करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा. तो डोमेन में इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन रैंडमली होती है. तो कुछ जो डोमेन्स होंगी, कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी ओरिएंटेशन ऐसे होगी एंड कुछ की ओरिएंटेशन ऐसी होगी. तो यहाँ पे क्या होता है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ इक्वल स्पिन्स. क्लॉकवाइज वाले भी इक्वल होंगे एंड एंटी क्लॉकवाइज वाले भी इक्वल होंगे एंड ये क्या करेंगे, स्पिन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. ओके, जितने ही यहाँ पे अप स्पिन्स होंगे उतने ही यहाँ पे डाउन स्पिन भी प्रेजेंट होंगे. तो क्या होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे एंड दिस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एंटी फेरोमैग्नेटिक. ओके, तो एग्जांपल लिखो यहाँ पे
Example is manganese oxide. Write it down. यहाँ पे लिखो, हो गया ये, और यहाँ पे पॉइंट ऐड करो, ऑन हीटिंग एंटी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस विल चेंज टू पैरामैग्नेटिक। तो लिखो ऑन हीटिंग एंटी पैरामैग्नेटिक substance changes to paramagnetic substance. So our next category is category 5 is ferrimagnetic substance. तो लिखो यहाँ पे next category is ferrimagnetic substance. So in ferrimagnetic substance there is a presence of unequal number of upspins and downspins. तो अनइक्वल प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, कुछ तो कैंसिल आउट हो जाते हैं बट देयर इज रिमेनिंग ऑफ अनरेजिडुअल। लिखो यहाँ पे देयर इज प्रेजेंस ऑफ अनइक्वल अपस्पिन्स। तो मैं आपको बताती हूँ, सपोज ये मेरे पास 5 है एंड ये मेरे पास 3 है, तो क्या हुआ, ये 3 कैंसिल आउट कर देंगे इन 3 को, बट मेरे पास ये रेजिडुअल मैग्नेटिक मूवमेंट बच जाएगी। देयर इज कैंसिलेशन of spin, but also there is presence of some residual magnetic movement। तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पे बच जाती है, सभी जो है वो डोमेन में कैंसिल आउट नहीं हो पाती। Write it down. Example is Fe3O4, that is called magnetite. And also on heating the ferrimagnetic substance it will change into paramagnetic substance। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ऐड कर लेना। So this is all about the magnetic properties। तो यहाँ पे आपका सॉलिड स्टेट चैप्टर जो है वो खत्म होता है। कल से हम एनसीईआरटी के एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कल की क्लास में स्टार्टिंग में पूछ सकते हो। बाकी आपका ये फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीटेड। अगर कोई टॉपिक रहता होगा तो मैं आपको करवा दूंगी कल, उसके बाद हम कल से स्टार्ट करेंगे एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू।